Hello students. In a past session we studied about properties of rational number, in which we studied about associativity, and I have given you some of the to check other properties. Okay, the remaining portion I have given to you to check it out, and we solved example number 1, and I have given you example number 2 to check in homework. Now today we'll study the rule of 0, rule of 1, negative of number, reciprocal of number, distributive law, and else. Okay. So our first topic is rule of 0. Who is considered the inventor of 0? Aryabhatta. Okay. So what is 0 now? Symbolically it is written like this. Okay. Now 0 is a kind of number when we multiply 0. Okay. 0 multiplied by any of the number, you can say a, the answer will always be 0. When we multiply anything with 0, the answer is always 0. And we divide anything with 0, and we divide anything with 0, the answer is not defined. Okay, answer is not defined or infinite. Okay, but when we add 0 to any of the number, means if we are adding any of the number, okay, we take any number as a. When we add it with 0, or when 0 is added to any of the number, the answer we get is number itself. 0 मतलब कुछ नहीं, खाली, nothing. Okay, so when nothing is added to anything, we get anything. Whatever we were having, that only remains constant. तो 0 किसी भी चीज के साथ ऐड होता है वो हमेशा 0 रहता, वो हमेशा वही रह जाता है. अगर यहाँ पे हम अपनी कम्यूटेटिव लगाते हैं तो 0 plus a was also equals to a. तो 0 किसी भी चीज के साथ ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है द नंबर इटसेल्फ. इसीलिए 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के साथ ऐड करे, आंसर में वही नंबर आता है. ओके, therefore 0 is additive identity. What is additive identity? If you are asked in your MCQ or any of the question, what is additive identity, they are supposed to write 0 is additive identity. Okay, now rule of 1. Rule of 1. Okay, as a study about 0, if 1 is added to any number, we get its success है. उसके बाद वाला जो नंबर, आफ्टर नंबर जो मिलता है वो मिलता है, जैसे कि 1 plus 1 we get 2, 2 plus 1 we get 3, 3 plus 1 we get 4. तो हमारा नंबर जो होता है, जैसे हमने 0 को ऐड किया था किसी भी चीज के साथ, जैसे कि a plus 0 we got the number itself, हमें नंबर ही मिलता था. पर a plus 1 हमें क्या मिलेगा, उसके बाद वाला नंबर मिलेगा, a के बाद वाला, जिसे हम a plus, हमें नंबर पता नहीं है इसलिए हम a plus 1 ही लिखते हैं. मतलब कि अगर समझे कि ये 5 है, 5 plus 1 लिखते तो हमें 6 मिलेगा, बट नंबर चेंज हो जाता है, इसलिए हम इसे 1 इज नॉट एडिटिव आइडेंटिटी, इसलिए 1 को हम एडिटिव आइडेंटिटी नहीं बोल सकते. ओके, बट 1 की क्या खासियत है हम देखते हैं यहाँ पे कि when 1 is multiplied with any number, मतलब कि कोई भी नंबर है उसको 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, नंबर इससे अपने टेबल्स में पढ़ा होगा. 1 1s are 1, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 4 1s are 4, 5 1s are 5. और इस तरीके से आपने सब जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी टेबल आपको याद है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो वही हमें मिलता था. पर इसमें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 we get 1, 2 multiply by 1 we get 2, 3 multiply by 1 we get 3. तो 1 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें क्या मिलता है, द नंबर इटसेल्फ. सो हम बोल सकते हैं कि नंबर, अभी सेम टू सेम अगर हम डिवीजन में जाते हैं, डिवीजन क्या है, नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन विद इट्स रेसिप्रोकल. ओके, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को करके फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है. सो अगर हम 3
डिवाइड बाय 1 लिखे तो 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करें तो आंसर क्या रहेगा, वही के वही। इसका मतलब क्या है, 1 का अगर हम रेशनल फॉर्म में लिखे तो 3 डिवाइड बाय 1 बाय 1, वापस हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई विद दिस रेसिप्रोकल, तो 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे डालो, 1 बाय 1 मतलब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 itself, वापस आंसर क्या आएगा 3। ओके, सो व्हेन 1 is multiplied with any number, 1 is divided by any number, sorry, any number is divided by 1 or any number is multiplied by 1, we get answer number itself. So a multiplied by 1 is equal to a, और a divided by 1 is also equals to a, और इसीलिए नंबर चेंज होता नहीं, whenever you multiply any number or divide any number with 1, okay, the answer is same। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि 1 is as 0 was additive identity, मतलब कि 0 additive identity थी, वैसे ही 1 होगी वो multiplicative identity होगी, मतलब कि 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, जो भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, हमारा आंसर क्या आएगा, तो नंबर ही आएगा। अंडरस्टूड? नाउ अ थर्ड टॉपिक इज नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ओके, अगर नंबर लेते हैं तो कोई भी नंबर, हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर में सारे के सारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं, फिर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सारे आ जाते हैं, तो ये रेशनल नंबर्स कहते हैं। ऐसे नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं a, तो a का नेगेटिव क्या होगा, तो व्हेनेवर एनी नंबर, कोई भी नंबर का नेगेटिव ढूंढना हो तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई विद -1, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा आंसर, a मल्टीप्लाई बाय 1 इज a, और माइनस साइन है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज माइनस, हमने पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था, व्हेनेवर प्लस साइन होती है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो आंसर क्या आता है हमारा, माइनस में आता है। प्लस साइन होती है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड प्लस साइन के साथ होती है तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। माइनस साइन होती है वो अगर प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो आंसर क्या आता है हमारा, माइनस में, और माइनस साइन होती है वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो आंसर क्या आता है हमारा, प्लस में, हमने पढ़ा था प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे देखो माइनस के साथ मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या आएगा, -a। तो जब भी कोई भी नंबर को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारा आंसर क्या आता है, -a। अब हम ऐसे कोई भी नंबर ले लेते हैं जैसे कि 3, तो 3 का हमें नेगेटिव ढूंढना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 कर देते हैं तो हमारा 3 का आंसर क्या आया, -3 आया। अब व्हेन अ नंबर एंड इट्स नेगेटिव, कोई भी नंबर जो होता है वो और उसका नेगेटिव दोनों का एडिशन हम सम अप करते हैं, जैसे कि 3 प्लस -3, तो आंसर हमें हमेशा मिलेगा 0। कोई भी नंबर को उसके नेगेटिव के साथ सम करते हैं हम तो आंसर क्या आता है, 0। ओके, तो जैसे कि a, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस माइनस a इज ऑलवेज 0। a प्लस माइनस a क्यों 0 होता है, तो प्लस माइनस वापस माइनस हो गया, a माइनस a, तो जो क्वांटिटी थी उसमें से वही क्वांटिटी हमने माइनस कर दी तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। अगर हमने क्या किया, अभी सम अप किया, प्लस किया, ओके, अगर हम ऐड करते तो क्या आता है, अगर ऐड किया, अगर हम माइनस करते तो क्या आता है, अब टेक्स्ट में नहीं किया है, अब देखते हैं कि 3 माइनस माइनस नेगेटिव नंबर के साथ अगर हम माइनस करते हैं, ओके, तो आंसर क्या आता है, 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 इज 6, तो 3 प्लस 3 इज 6, हम 6 को बोल सकते हैं 2 into 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बोल सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी नंबर के नेगेटिव को उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर उसका डबल आता है, बट कोई भी नंबर को हम उसके नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर में एनी ऑफ द नंबर को अपने नेगेटिव के साथ ऐड करते तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई करके। तो समझो हमें 5/19 का नेगेटिव ढूंढना है तो क्या करेंगे, 5/19 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमारे को हम न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर करते हैं, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, 5 1 5 -5 आंसर बाय 19।
अब वापस चेक करते हैं तो 5/19 प्लस माइनस 5/19 डिनोमिनेटर सेम है, प्लस माइनस माइनस तो 5/19 माइनस 5/19 डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 5 माइनस 5/19 इज इक्वल टू 0/19, आंसर आएगा 0। ओके, तो किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है तो उससे -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो उसका नेगेटिव होता है। नाउ तो हम उसको नेगेटिव बोलते हैं या तो फिर उसका एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स मतलब कि उसके साथ ऐड करते हैं, ऐसा नंबर कोई भी नंबर हो उसको ऐसे नंबर के साथ ऐड करते हैं कि आंसर 0 आए। तो कोई भी नंबर ले लेते हो, ओके, -a ले लेते हैं। अब -a कोई नंबर है -a, अब -a को मैं कौन से नंबर के साथ ऐड करूंगा तो आंसर मुझे 0 मिलेगा। तो -a प्लस में a करूंगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये -a का एडिटिव इनवर्स क्या है, a, ओके, और a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस है। तो कोई भी नंबर का इनवर्स होता है वो उसका एडिटिव इनवर्स होते हैं, ओके। अब अगर समझो मुझे नेगेटिव ऑफ मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 ढूंढना है, ओके, नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, ऐसे हमारा जो फार्मूला था मल्टीप्लाई विद -1, ओके, -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 5 5 माइनस माइनस प्लस, हमारा पॉजिटिव 5 आ जाएगा। तो प्लस 5 है वो -5 का एडिटिव इनवर्स हो गया। अंडरस्टूड? तो एडिटिव इनवर्स के बारे में हमने पढ़ा, ओके। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। नाउ as we discussed about additive inverse, now we supposed to discuss about reciprocal। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, तो जैसे एडिटिव इनवर्स में हमने पढ़ा कि जब भी कोई भी नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है उसके साथ ऐड किया जाता है तो आंसर आता है 0, ओके। रेसिप्रोकल में कोई भी नंबर के साथ उसका रेसिप्रोकल मतलब कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल का दूसरा नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कुछ नहीं करने का, आपको कोई भी नंबर होता है p/q के फॉर्म में होता है कोई भी नंबर, अगर q में कोई नहीं होता तो 1 तो होता ही है, तो कोई भी नंबर हम लेते हैं p/q रेशनल फॉर्म में, ओके। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, तो q को p की जगह ले जाओ और p को q की जगह ले जाओ, तो q/p होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, okay। Whenever a reciprocal of a number is multiplied with the number itself we get 1। तो समझो p/q if multiplied by its reciprocal that is q/p, तो देखो p 1 सार p और q 1 सार q, का आंसर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1, आंसर 1 आएगा। तो कोई भी नंबर अगर उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई हम करते हैं तो आंसर आता है 1। जैसे हमारा एडिटिव इनवर्स में था कि उसके एडिटिव इनवर्स के साथ हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जो उस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं 2/5, ओके। तो अगर मैं उसको रेसिप्रोकल ढूंढता हूं तो रेसिप्रोकल क्या होगा, इज इक्वल टू, चेंज कर दो चलो, तो 5/2 मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/2 तो 2 कैंसिल, 5 कैंसिल, तो आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1। अगर नेगेटिव नंबर्स है, ओके, नेगेटिव नंबर लेते हैं तो -7/15, ओके। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रिमेंबर वन थिंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू चेंज द साइन व्हेनेवर यू आर डूइंग रेसिप्रोकल। तो किसी भी चीज का रेसिप्रोकल करते हो आपको साइन चेंज करनी नहीं है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -15/7, ओके। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज -7/15 मल्टीप्लाई बाय -15/7, ओके। तो 7 7 कट, 15 कट, -1 into -1 माइनस प्लस 1 into 1 1, ओके। अगर ये साइन हम नीचे रखते हैं ऐसे तो डिवीजन में नीचे साइन होती है जो डिनोमिनेटर के साथ वो ऊपर चली जाती है, हम उनको आगे लिख सकते हैं, पर अगर वैसा नहीं कर रहे हम इसके साइन नीचे ही रखते हैं तो -7/15 मल्टीप्लाई बाय
15/-7 लिखते हो क्या? ओके, तो -7 1 4 -7 -7 1 4 -7, तो यहाँ पे आंसर 1 15 1 4 15, तो डायरेक्ट 1 into 1 1 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज योर रेसिप्रोकल, additive inverse and multiplicative inverse. Now we are going to study about distributive law, the property of distribution. Distributivity of multiplication over addition. Multiplication over addition समझते हैं या multiplication over subtraction समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले एडिशन देखते हैं। कोई भी नंबर, तो whenever you are given any number a, ओके, और अंदर नंबर दिए b into b plus c, दो नंबर, तीन नंबर दिए हुए, ओके, a मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट b plus c दिया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल so supposed to multiply a with b in first step. You have put the sign in middle and then supposed to multiply the number with the next one. तो क्या करेंगे? पहले a multiply by b लिखेंगे, फिर वापस जो साइन थी वो, और फिर b multiply by a multiply by c. तो हमने क्या किया? देखो, a को पहले यहाँ रखा और फिर यहाँ रखा, ये b को और c को ट्रांसफर कर दिया। हमने क्या किया? ए का डिस्ट्रीब्यूशन किया। क्या किया? ए का डिस्ट्रीब्यूशन किया, दोनों सेट, दोनों जो टर्म है उसके साथ ए का डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ए का, इसीलिए हम बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एज कोई नंबर ले लेते हैं हम कि 3 मल्टीप्लाई बाय 5 plus 2, ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 plus 2, तो क्या लिखेगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 plus 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6, तो आंसर मिलेगा 21। ओके, 5 plus 5 दैट इज 20 और 1 रहेगा इसलिए 21 का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते थे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 plus 2 कितने होते हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 5 plus 2 लिखते हैं। 3 into 5 plus 2 कितने होते हैं? 7, 3 7 are 21, हमारे आंसर सही दोनों। तो ये हुई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन। ओके, एडिशन देखते हैं, एडिशन देखा। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। वैसे इक्वल ही है, एक जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो समझो कि a into b minus c दिया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने का? a into b, जो बीच में साइन है वो रख देने की, और b a into c। ओके, तो समझो कि 3 into 5 minus 2 दिया होगा, क्या लिखेंगे? 3 into 5 minus 3 into 2, आंसर क्या है? 3 5 15 minus 3 2 6, आंसर आएगा 9। यहाँ पे करते हैं तो 3 into 5 minus 2, 3 into 3 that is 9 itself, हमारा आंसर होगा। वो दोनों सेम आ रहे हैं, बट अगर उसको दूसरे तरीके से हमें लिखना है, ओके ओके, वी आर नॉट ओनली कंसीडरिंग दिस a b and c आर होल नंबर्स। a और b और c होल नंबर्स ही नहीं है, सिर्फ इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, इट अप्लाइज इन ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर। तो अगर हमें ये चेक करना है तो हम c की जगह पे क्या लिख सकते हैं? दूसरा, तो a into b प्लस में माइनस c लिख सकता हूँ, a into b प्लस माइनस c। ओके, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, हमारी सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन। तो चलो अब वापस a का डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो a into b जैसे हमने किया था, फिर जो साइन थी प्लस, और फिर यहाँ पे a into माइनस c। ओके, तो प्लस a into माइनस c आंसर क्या आएगा? प्लस a into माइनस c आंसर क्या आएगा? माइनस a into c, मतलब कि यहाँ पे बीच में साइन चेंज हो जाएगी, तो a into b, सॉरी a into b, यहाँ पे माइनस a into c आ जाएगा वापस। तो हमारा जो था इक्वेशन पहले वाला वो आ गया। तो इस तरीके से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ यू आर गिवन सम एग्जांपल्स। यहाँ पे ट्राई दिस दिया हुआ है कि 7/5 into -3/12 plus 7/5 into 5/12, और फिर आपको फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करके आपको लिखना है
एक में करके दिखाता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से होमवर्क में करिएगा, टेक्स्ट अपनी जो नोटबुक है मैथमेटिक्स की उसमें। तो द क्वेश्चन गिवन इज 7/5 इंटू मल्टीप्लाई बाय क्या है -3/12, फिर क्या दिया है यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट, फिर क्या दिया बीच में प्लस 7/5 इंटू 5/12, 7/5 इंटू 5/12, ओके। यहाँ पे दिया हुआ है आपको 7/5 इंटू 5/12, ये 5/12, 7/5 इंटू 3/12। तो अगर आप ब्रैकेट खोल रहे हो तो यहाँ पे कोई साइन पीछे माइनस की है नहीं, तो साइन चेंज होगी नहीं, हम लिखते हैं 7/5 मल्टीप्लाई बाय -3/12 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो तो +1 इंटू 7/5 तो 7/5 रहेगा, +1 इंटू 5/5 5/12, ओके। नाउ यहाँ पे देखते हैं हम, तो 7/5 और 7/5 कॉमन है, जैसे हमने देखा था ये जो कॉमन में पीछे जाता है कैसे, a इंटू बी प्लस सी, तो इसको क्या लिखते हैं हम a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहाँ पे देखो a कॉमन आ रहा है, तो a की जगह पे क्या 7/5 दिख रहा है हमें, तो हम ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं इसके ऊपर से, और ये वाले के दोनों के डिनोमिनेटर देखो सेम है, तो इन दोनों का ऑपरेशन इजी हो जाएगा। तो लिखो कॉमन में 7/5 निकाला, तो यहाँ पे क्या है यार -3/12 sin 5/12, ओके। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या लिखोगे हम 7/5 इंटू ब्रैकेट निकाल दो -3/12 प्लस 5/12 अगेन 7/5 is supposed to write equal to, okay, in front of all the terms, 7/5 into -3 plus 5/12 लिख सकते हैं हम, ओके। ऐसे हम पहले करते थे, 7/5 into -3 plus 5 that is 2/12, ओके। अब हम 2/12 है इसीलिए हम कट कर सकते हैं, 2 6 8 12 हम लिखेंगे 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब डायरेक्ट ये में दो टर्म मिली हुई है, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 7 1 7 7 5 6 30, तो हमारा आंसर आ गया, ओके। तो इसी तरीके से आपको दूसरा करना है। नाउ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, एग्जांपल नंबर 3 यू आर सपोज्ड टू फाइंड एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो लेट मी क्लियर ऑल दिस, we're gonna get lot of homework today, okay. So you will be having to actually practice your mathematics very well today. So your number is given -7/9 and you are supposed to find additive inverse, okay। एडिटिव इनवर्स ढूंढना है, तो हमने कैसे ढूंढा था, a का एडिटिव इनवर्स a into -1 था, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर क्या आएगा 7 into -1 क्या आएगा, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, 7 into -1 दैट इज 7 और 9 into 1 दैट इज 9, तो ये हुआ उसका एडिटिव इनवर्स। चलो दोनों का एडिशन करके देखते हैं, -7/9 plus 7/9 that is -7 plus 7/9 that is 7 minus 7 is 0/9 is equal to 0, तो ये उसका एडिटिव इनवर्स है। तो आपको दूसरे टर्म का ढूंढना है, ओके। फिर यहाँ पे दिया हुआ माइनस, वेरीफाई दैट माइनस into -x is the same as x, तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन दिया हुआ है, और सपोज टू वेरीफाई, ओके। एग्जांपल नंबर 4 के अंदर दैट माइनस इंटू -x इज इक्वल टू x, ये प्रूव करना है, ओके। और नंबर्स दिए हुए x इज इक्वल टू 13/7, x इज इक्वल टू 13/7। तो पहले हमारा जो x है इनर कोड देखो इसके अंदर का, तो x का सबसे पहले एडिटिव इनवर्स दिया है, तो हम क्या करेंगे x का एडिटिव इनवर्स लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल -x इज इक्वल टू 13/7 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले देखते हैं -x कैसे होगा, तो x into -1 इज इक्वल टू -x, इस तरीके से हो रहा है, तो क्या होगा 13/7 into -1 इज इक्वल टू क्या होगा -13/7,
ओके, तो ये मिल गया हमें माइनस एक्स वाला पोर्शन। अभी उसका भी माइनस हो रहा है, तो क्या होगा माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस एक्स। ओके, तो क्या होगा वापस माइनस माइनस एक्स क्या था हमारा माइनस 13/7 माइनस 13/7 इज इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस 13/7। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 13/7, बट 13/7 इज इक्वल टू क्या है वो x है हमारा। 13/7 इज इक्वल टू x कैसे, तो कैसे मिला हमें गिवन दिया हुआ है, इसलिए कैसे दैट हेंस माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसलिए हम बोल सकते हैं आपको दूसरे टर्म का ढूंढना है। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 5 आपके दिया हुआ है एक, तो हम वो सॉल्व करेंगे एग्जांपल and then I will give your exercise into your homework. If you are not able to do it, you can ask me. Okay, I will explain the exercise. मैं explain करूँगा कि आपको कैसे करनी है solve. Okay, and I will give few of the portion, some of the portion of that exercise to solve it today. Okay, so now the sum is 2/5. Example number 5. Okay, sum is 2/5 into minus 3/7 minus 1/40 minus 3/7 multiply by 3/5। ये आपके सम दिया हुआ है, एक्चुअली भी लिफ्टेड है, थोड़ा ऊपर चलेगा minus 3/7 multiplied by 3/5। okay, minus 3/7 into 3/5। now see the denominators। सबसे पहले जब whenever you are doing any of this sum, okay, तो सबसे पहले ट्रिक क्या होती है कि उनके सबके डिनोमिनेटर देखो, तो देखो इसके और इसके डिनोमिनेटर सेम है, और ये तो पूरा का पूरा टर्म सेम दिख रहा है, और इसके डिनोमिनेटर भी सेम है। अब इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले ट्राई करेंगे कि ये जो सेम डिनोमिनेटर वाले हैं उसे नजदीक लाने की कोशिश करेंगे। ये वाला अलग पड़ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, पहले बाहर निकालेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, देखो ये पूरे टर्म के बीच में और इसके बीच में, और ये तीन टर्म है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये टर्म ये टर्म, तीन टर्म लिख दिया मैं, तो इन तीनों के बीच में क्या है साइड से सब्ट्रैक्शन है। ओके, और पूरे के पूरे टर्म को रिप्लेस करते तो आंसर सेम रहेगा। तो 2/5, या तो फिर हम पहले करते सबका अलग कर देते। ओके, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/7, तो यहाँ पे प्लस 1/14 प्लस माइनस 3/7 इंटू 3/5। ओके, तो सारे एडिशन में आ गए, तो हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में पहले सीखा था कि एडिशन are closed। okay, the integers or rational numbers are closed in the addition के अंदर तो वो closed होते हैं, तो उनका हम चेंज कर सकते हैं। तो now let us write 2/5 multiply by कहाँ गया 3/5 ये रहा। ओके, 2/5 तो ये टर्म पूरा लिखो, माइनस 3/7 ये टर्म आगे ला दो, प्लस माइनस 3/7 इंटू 3/5 प्लस माइनस 1/40 लिख दिया। ओके, नाउ अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जो टर्म है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या था ए बी इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये इक्वल टर्म थे, जिसे हमने यहाँ पे कॉमन था तो हमने क्या निकाला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट में दिया हुआ है तो कॉमन कर सकते हो वापस, तो क्या करेंगे इसको कॉमन करेंगे, तो क्या आएगा माइनस 3/7 इंटू यहाँ पे क्या रह गया 2/5 और यहाँ पे क्या रह गया प्लस 3/5, वापस क्या रह गया प्लस माइनस 1/14 इजीली। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों के क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, तब क्या करेंगे डायरेक्ट ऑपरेशन करेंगे, तो माइनस 3/7 इंटू 2 प्लस 3/5
5 प्लस -1/14। ओके, अब क्या आएगा -3/7, 2 प्लस 3 दैट इज 5/5 प्लस -1/14। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हमारा 5/5, और 5/5 जो टर्म आ रहा है वो हम बोल सकते हैं किसी भी नंबर को उसी से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है। फॉर एग्जांपल 5 डिवाइड बाय 5 दैट इज 1, तो किसी भी नंबर को उसी के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वापस -3/7, और आप कट करते थे ना, ऐसे कट भी कर सकते हैं 5 प्लस 5 के, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -1/14। ओके, now that is -3/7 और प्लस माइनस दैट इज प्लस माइनस यहाँ पे दिया हुआ है तो ये क्या आएगा -1/14। अब क्या होगा कि यहाँ पे दो -3/7 -1/14 ये सिंपल ऑपरेशन दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर सेम है, नहीं तो उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा या तो फिर न्यूमरेटर इक्वल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 7 × 2 लिखते हैं दैट इज 14, तो ऊपर पे 2 कर दो तो 2 डिवाइड, वापस हमारा टर्म सेम ही रहेगा। तो हमने क्या किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा -3 × 2 दैट इज -6/7 2 14 -1/14। तो हमारा दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम डायरेक्ट ऊपर ऑपरेशन कर सकते थे। क्या दिया हुआ है दैट इज -6 -1/14। अब जब भी सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन दिया हुआ है दैट -6 -1 या -7 -3 या ऐसा दोनों ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के हो तो हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन लिखेंगे और आंसर करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो 6 + 1 दैट इज 7 और आंसर आएगा -7/14। अब हम देख सकते हैं इस टर्म के अंदर कि 14 है जो 7 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका हमें रिड्यूस्ड फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या होगा कि हम जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो कट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे -7 का मतलब क्या होता है -1 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसके अंदर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 7 कॉमन फैक्टर कट हो गए, हमारा आंसर आएगा -1/2। ओके, दैट इज गिवन, अंडरस्टूड। तो आपके दिया हुआ है, तो ये सब मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज 1.1 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। ओके, होमवर्क में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, यू आर सपोज टू फाइंड यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड आउट। तो जैसे मैंने ये सम किया है उसी तरीके का आपको ये सॉल्व करने हैं। ओके, दे आर सेम और सेम ही इक्वल जैसे ही है। नाउ राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो एडिटिव इनवर्स लिखना है आपको। आपको कौन से एग्जांपल में था कि एग्जांपल के अंदर देखो एग्जांपल नंबर 3। ओके, तो उसके जैसे ही है मल्टीप्लाई बाय -1 करके लिखना है। फिर वापस एग्जांपल नंबर 4 की जगह से -(x) वेरीफाई करना है, तो दैट आल्सो यू कैन डू इट। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब कि आपको रेसिप्रोकल ढूंढना है। ओके, एग्जांपल नंबर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव रेसिप्रोकल जो है 1.2.7 उसके अंदर मैंने समझाया था a/b = a/b, उसका रेसिप्रोकल होगा b/a। तो उसकी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप ढूंढ सकोगे। फिर नेम द प्रॉपर्टीज। तो आपने जैसे प्रॉपर्टीज पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो उसको आपको देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। तो दैट आल्सो यू कैन डू इट। मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 7/16। तो यहाँ पे आपको 7/16 का रेसिप्रोकल ढूंढना है और फिर उसे मल्टीप्लाई करना है 6/13 से। एट द प्रॉपर्टीज टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपको अलाउ करेगी इसको ये बनाना है। 1/3 × 6 × 4/3 एस 1/3 × 6 × 4/3। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है। ओके, और फिर उससे कंप्यूट करना है, सॉल्व करना है। यू कैन सॉल्व इट। ओके, नाउ is 8/9 a multiplicative? यहाँ पे you are supposed to check whether 8/9 is the multiplicative inverse of -1 integer 1/8. why? अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। you are supposed to write reason over here. Okay, and
9, question number 9 is 0.3 the multiplicative inverse of 3 integer 1/3. तो 0.3 है वो 3 integer 1/3 का multiplicative inverse है या नहीं है, ये आपको सॉल्व करना है आपके नोटबुक के अंदर and you are supposed to solve it in your notebook, complete your notebook and solve it till question number 9. Okay, bye.